أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ الحمد للہ۔ الحمد للہ علی کل حال یا استاذی۔ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے۔ اچھا مجھے آواز تھوڑی سی ویہ کم آ رہی ہے، تو آپ لوگ آہستہ بول رہے ہیں یا میں نے آواز کم کی؟ میں 1 منٹ دیکھوں سے۔ جی اب بولیے گا ذرا، کوئی سسٹر بولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے اینڈ پہ ذرا آواز کم ہوئی ہوئی تھی۔ اچھا جی، ہمارا کورس ہے کیف آئیے۔ حالک یا استاذی؟ الحمد للہ انا کیف بخیر انا حالک؟ بخیر انا بخیر الحمد للہ علی کل حال۔ آئیے قرآن ماشاء سمجھے اللہ۔ آسان طریقے سے۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔ ہمارا ہے کورس 2 صفحہ نمبر 5۔ آج ہم اشارہ اے کریں گے۔ الحمدللہ سے ہم اپنے آخری پیج کا پہلا پوائنٹر آج کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس حساب سے کل ہم بھی کریں گے اور نیکسٹ ویک میں ہمارا کورس الحمدللہ لیول 2 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نے کورس 2 شروع کیا تھا تب اور اب میں ہماری تلاوت میں یا قرآن کے فہم میں یا جو ہم نے مختصر شرح سیکھی یا ہمارے عمل میں کیا تبدیلی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ سے بڑے آسان کورسز بنائے گئے، بہت محنت ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی۔ پھر جیسے جیسے یہ ہمارے اساتذہ تک پہنچا اور ہم نے آپ تک پہنچایا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آپ کو بھی حدیث کے دونوں پہلوؤں پر عمل کرنے والا بنائے، یعنی کہ آپ بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ضرور نیت کر لیا کریں، کیونکہ نبی کریم انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی نا، کہ ایک آیت بھی مجھ سے خیر سنو تو پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ بلغوا بلغوا ولو عنی عنی، ولو ہاں جی، آیہ۔ بالکل بالکل، کہ ایک آیت بھی ہو تو آگے پہنچا دیا کرو۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش ضرور کریں گے۔ اچھا جی، ہمارے تھے قرآن سیکھنے کے جو ہمارے QC2 کے مقاصد۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی رینڈم پیج کھولنا ہے قرآن مجید کا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں واقعی، تقریباً ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ تو آسان ہے، اس میں آسان آسان الفاظ ہیں، بعض اگلی صورتیں آئیں گی جو ہمیں تجوید کے حوالے سے بھی تھوڑے سے الفاظ پڑھنے مشکل لگتے ہیں نا، کچھ ابھی ہم نے QC3 والے افعال نہیں کیے، ان کو چھوڑیں، جو سادہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ کیا ہمیں واقعی الحمدللہ سے 7 الفاظ سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ جو ابھی نہیں پڑھا، ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں تو ہم خود سے بھی سوال نہیں کرتے نا کہ یہ مجھے کیوں نہیں آ رہا۔ ترجمہ ہم دیکھ سکتے ہیں، بالکل ہمارے پاس ترجمے والی جو ایپس بھی ہیں قرآن مجید بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ سے آپ کو انشاءاللہ 7 نہیں تو 5 الفاظ تو ضرور ایسے ملیں گے ہر سطر میں سے جو ہم QC1 اور 2 میں سیکھ چکے ہیں۔ اگر بالکل وہی سیغے بھی نہیں ہیں تو ان سے کچھ، جیسے ہم نے بھی مؤنث والے نہیں کیے ہوئے یا ہم نے ڈیول والے نہیں کیے ہوئے، تو ان سے کم از کم ملتے جلتے الفاظ ہمیں ضرور نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے اشاروں اور فکروں کے ذریعے ہم نے نئے الفاظ معنی کیسے سیکھے، جیسے ہم نے کچھ فریزز اپنے QC1 میں بھی سیکھ لی تھی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ مع الصابرین، انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہم نے آپ سے
जब स्लाइड में कुछ अलग सा तर्जुमा आता है ना, उसे भी हम आपको बताते हैं ना कि इसको इसी तरह से याद कर ले, खास तौर पर जब वाव का तर्जुमा हालांकि वाला होता है तो बताया जाता है कि इसको ज़रूर ऐसे याद कर लें। इसी तरह जहाँ कहीं हमें माँ का माना नफ़ी वाला नज़र आता है तो उसे अक्सर हमें माँ के बाद इल्ला या मिन नज़र आ जाता है, तो हम उसे पॉइंटर उस तरह से मिला लेते हैं कि अपना ये जो इशारा उसमें से ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ऐसे याद कर लें। तो अपने पास भी ऐसे छोटे छोटे फ्रेज मिला मिला कर याद कर लिया करें। अच्छा जी, कुरान मजीद को ज़िंदगी में लाने का तरीका हम सीखते हैं। इसी तरह से हर सत्र में हमने कमज़ोर अफ़ाल को सीखा, क्योंकि जैसे सेहतमंद अफ़ाल अगर 9000 मरतबा आपको नज़र आएंगे कुरान मजीद में, तो बिल्कुल उसी तरह से कमज़ोर अफ़ाल भी हमें हर सत्र में एक बार ज़रूर नज़र आएगा। और ये तकरीबन वाली बात होती है, अगर एक सत्र में नहीं है हो सकता अगली दो सत्रों में हो, तो ये है इसी तरह से जो तकरीबन वाला हिसाब है ऐसे लगाया जाता है। अच्छा जी, 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखे, और हमने जो सीखा है ना, हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, तो इस तरह से भी हो जाता है ना कि जैसे आज एक डायलॉग इस तरह का देखेंगे कि जैसे उसने कहा उन सब ने कहा, तो ये किससे मुखातिब है या हमें क्या बताया जा रहा है। अपने लिए भी ज़रूर बिल ज़रूर अपन हम लेसन भी निकालेंगे, आइंदा के लिए प्लान भी बनाएंगे। हमने शुरू किया है सूरह फातिहा से, फतह यफ्तहू। अब इतना सा हमें खुद ब खुद जोड़ना आना चाहिए कि अल फातिहा है, इस पे अल लगा हुआ है, इस्म है, और फातिहा तू, हमने देखा था कि अगर मुज़क्कर इस्म को गोलता लगा दी जाए, जैसे अल मुस्लिम है तो अल मुस्लिमतु। अब हम फतह यफ्तहू, थोड़े थोड़े से हमें रूट लेटर भी समझ आने लग जाते हैं कि अलिफ लाम में देखें अल तो नहीं हो सकता ना हिस्सा उसका रूट लेटर का, तो हम जब थोड़ा सा फातिह तक पहुँचे, फातिहुन, उसी की मोनस आ जाती है फातिहतुन। तो कोशिश करते रहना, अब पूरा पूरा ना भी पहुंचे अगर टेबल तक तो थोड़ी समझ आनी चाहिए कि किससे मिलता जुलता लफ्ज़, क्योंकि अरबी की जो ज़ुबान है इसमें बहुत सारे वज़न बराबर करने से भी काफ़ी सारे जो अल्फाज की भी समझ आने लग जाती है, उनके बनावट की भी समझ आती है, और मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क भी समझ आने लग जाता है। हमने सूरह बकरा से शुरू किया, मुत्तकीन के लिए हिदायत और कोशिश करनी है, हमने पूरी कोशिश करनी, थोड़ी थोड़ी नहीं, कि अल्लाह ताला हमें भी इन सिफात वाला बनाए और हमें अल्लाह ताला इस ग्रोह में रखे जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब फरमाई। हम खुदा न खास्ता काफिरीन में से ना हो जाएं, हम मुनाफिकीन में से ना हो जाएं। मुनाफिकीन भी हमने देखा ना, दो ग्रोह थे, एक कच्चे मुनाफिकीन थे और एक पक्के। जो पक्के मुनाफिकीन उनके तो लौटने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और जो कच्चे थे उनमें ये था कि कहीं कहीं डोल भी जाते थे ना ईमान में भी, और कहीं कहीं उनको फिर ये जो शिरकिया या कुफरिया बातें थी वो भी गलत लगती थी। बहुत से आगे चलकर दायरा इस्लाम में भी दाखिल हुए, इसके बाद हमें बहुत सी मिसालों के साथ समझाया गया। आज जो हमारा टॉपिक है, यहाँ तक हमने हिदायत के बारे में पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो पहले इंसान जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत नसीब फरमाई। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें छोटा सा एक ये भी बताया जा रहा है, जब मैं पेन लगाती फिर ये सिर्फ पेन से ही चलता है। अच्छा जी, आज ये बताया जा रहा है कि ये जो 5 सफ़ात हम पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ साथ हम इसकी ग्रामर भी पढ़ रहे हैं। ग्रामर इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कुछ अफ़ाल हमारे QC3 में आने हैं। ठीक है, हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं कि QC3 में आएगा, QC3 में QC, इसका मकसद क्या है कि आपने QC2 के बाद छोड़ नहीं देना, बल्कि इंशाल्लाह QC3 में हम इस अज़म से दाखिल होंगे कि अब तक जो हमने सीखा वो हमें अप्लाई करना आ जाए। तो अगर थोड़ी सी ब्रेक आती है ना एक लेवल से दूसरे में, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हमने जो भी अहादीस पढ़े, कुरान पढ़े, दुआएं पढ़े, हम देखें कि ये वाले सीए जो हम अपने QC1 और 2 में पढ़ के आए हैं, क्या हमें अप्लाई करना आ रहा है, वो सब कुछ क्या हमें उनकी समझ आ रही है। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है इसका बहुत फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे खुद समझ आए या कुछ ऐसी चीज़ें जो ना समझ में आए, तो ग्रुप आपके लिए ओपन रहता है अगले कोर्स के शुरू होने से पहले तक। तो ज़रूर बिल ज़रूर अपने साथियों से कोर्स के हवाले से बातें करते रहा करें। अच्छा जी, हमारे पेज अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हुए 4, और आज हम अपना 5वां पेज कर रहे हैं। अच्छा जी, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात।
यहाँ तक हमने अपना पहला पेज कंप्लीट किया था। फिर बात आ गई इनकार करने वालों की, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। अब जब हिदायत नहीं थी तो उसकी वजह क्या थी? वो एक तो फसाद फैलाते थे, और फसादी कैसे थे? बेवकूफ थे। यानी कि वो समझते थे हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो खुद को धोखा दे रहे थे। और वो दो रुखे थे, जब मुसलमानों से मिलते तो मुसलमानों के साथ हो जाते, जब अपने सरदारों से मिलते तो तब कहते कि हम कोई बेवकूफ हैं जो हम ईमान लाए उन लोगों की तरह। फिर इसके बाद आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, नार से हमने आग सीख लिया, बारिश का हमने कहा था अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफियन, ये जो दुआएं इनसे थोड़ा थोड़ा रिलेट करके समझ लिया करें। वैसे भी समा का जिक्र आया था, तो यानी कि आसमान से बारिश बरसती है। कुरान की दावत की बात हुई, कुरान का चैलेंज। इसके बाद वईद व बशारत, यहाँ हमने क्या सीखा था कि एक ऐसा ग्रोह जिसने हिदायत को कबूल नहीं किया उनके लिए वईद है, और जिन्होंने ईमान ले आए, जो जिन्होंने सारे अहकामात मान लिए, उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है। कैसी जन्नत? जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। मच्छर की मिसाल देकर बताया गया कि अल्लाह ताला क्या हम अदना से अदना चीज़ की भी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दी है। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा नहीं की। गुमराह कौन और कुफ्र कैसे, यहाँ तक हमने अपना 4D कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे खलीफा पर सवाल, इसके बाद हम पढ़ेंगे अस्मा की तालीम, और नेक्स्ट वीक में हम सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। अब ये जो पेज शुरू हुआ है, यहाँ पर जो हम बचपन से अपने ये जो किस्से काफ़ी सारे सुनते आए थे जन्नत से निकाल ले जाने के, तो वो थोड़ा सा अगर हमारा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो वो भी यहाँ हम सीख लेंगे। हमें समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा चुना है, यानी कि अच्छा, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अपने लेसन में आगे सीखते हैं कि ये कोई ऐसे नहीं था कि एक कोई गलती हो गई तो अचानक से इंसान जो ज़मीन पर आ गया। अगर मुख्तसर इशारों की बात की जाए, खलीफा अस्मा सजदा तौबा, खलीफा अस्मा सजदा तौबा। अच्छा, ये सारे आ पर ख़त्म हो रहे, इस तरह से भी याद हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। अच्छा जी, आज का ये जो हमारा है खलीफा पर सवाल, अब पिछली आयत से लिंक कैसे करेंगे? इससे पहले अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों और हिदायत ना पाने वालों का जिक्र किया। अब यहाँ अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि हिदायत तो उसी वक़्त से दे दी गई थी जब से इंसान की पैदाइश हुई है। अहद अलस्त के बारे में हमने पढ़ा कि जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा किया और अहद उनसे लिया, हिदायत उस वक़्त दे दी थी। इसके बाद फिर वो एक ख़ास निज़ाम के तहत भुला दिया गया। फिर इंसान दुनिया में आता, उसको चॉइस दे दी गई कि वो नेकी का रास्ता चुने या बदी का। और इसके साथ साथ हमने किस बात पर शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके ये जो शुक्र का मुकाम है, इसके साथ साथ हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा आयद होती है। इस वाक़या के अलावा इसमें और भी हमें कई असबाक मिलते हैं। तो आज का जो लेसन है, इसमें से कोई लफ्ज़ आपको नया नहीं लगेगा इंशाल्लाह। उर्दू से रिलेट होते जाते हैं तो वो इंशाल्लाह आसान हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर इनके हिसाब से 3 अल्फाज, एक एक और एक, ये इसमें से इंशाल्लाह हमें उर्दू से मिलाकर सारे ही लफ्ज़ आते होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम तिलावत करते हैं, फिर साथ ही तर्जुमा करेंगे, रवा तर्जुमा, फिर एक एक लफ्ज़ को देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, अब मुझे बताते जाएं जो अल्फाज हम पढ़ के आ गए हैं। वाव हमारा पढ़ा हुआ, माइक ऑन करके मुझे आंसर करते जी जाएं।
वाव पढ़ा हुआ, इस जी पढ़ा हुआ, कौला, कौला भी पढ़ा कौल रब्बुका मलाइका, और ली हमने मलाइका लिल्लाही से ली भी पढ़ा हुआ है। इन्नी, इसमें क्या है? ये भी पढ़ इन प्लस ना, बेशक ठीक है, बेशक मैं। और ये जो नून है इसी को हम विकोया कहते हैं। और ये जो या है ये अपनी तरफ, जैसे हमने कहा था ना, रब्बी जिदनी। अब बच्चा जी इनी, बच्चा अब इनी वाला नहीं ना हो सकता, तो इन्नी, ये एक नून अपनी तरफ के लिए विकोया, यानी कि ये बचा लेता है ना। इसको इनी होने से पढ़ना भी मुश्किल चाले था, समझना भी मुश्किल था। जैसे जिदनी में जिद्दी होता तो वो समझना जरा मुश्किल हो जाना था। अच्छा, जाइलुन कहाँ से आया होगा? जाइलुन, ये हमारा जाला का मतलब है जाला का टेबल है, और जाइलुन, अल्हम्दुलिल्लाह। फी पढ़ा हुआ, अर्द पढ़ा हुआ, खलीफा अगर हमने पहले नहीं पढ़ा तो खलीफा हम वैसे भी जानते हैं ना, जानते हैं। जो नाइब नाइब होता है ना। नाइब बल्ला था। बिल्कुल नाइक बिल्कुल, को कहते हैं नाइब को नाइक कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है कौलू, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। अब ये जो ये मद भी इसके ऊपर अल्फाज नजर आता आ है। रही, जी, ये जो मद नजर आती है ना, ये होता है तजवीद का रूल, ये आगे क्योंकि आगे जी हमजा है ना। आगे अगर हमजा बिल्कुल, आएगी तो फिर वो एक तजवीद का रूल हो जाता है। वैसे ये वही वाला कौला कौलू है। इसके बाद ये जो इकट्ठा नजर आ रहा है ना, अतज अलू, ये अलग अलग है, ठीक है, ये ऐसे है। ये जो क्या इसको हम कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तज आलू भी हमारा पड़ा हुआ, ये जो हमने कहा था अंता तज आलू और हिया तज आलू, ठीक है। तो हमें तर्जमे से पता चलता है ना, हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हमें पता चल जाएगा ये हिया वाला है कि अंता वाला है। देखिए अब हमें पता चल रहा है ना, क्या तू बनाता है, क्या वो बनाती है, तो नहीं है ना, क्या तू बनाता है, तो पता चलने लग जाता है। फीहा पड़ा हुआ, मन, मन पड़ा हुआ है, मन, जी क्या मन दो कौन माने? हमने मन सीखा था कितना मंगल से वाला मन मन, इसके दो माना मन पड़े थे ना, कौन जो जी कौन और और जो, जो ठीक है, एक कौन जी ठीक है। अब युफसिदु, युफसिदु जो है ना, ये ये हमने फसा दास से था हाँ, ये हमने ना QC3 में पूरा टेबल करना है, लेकिन हमने ये फसाद वाला पीछे भी पढ़ गया ना, वाला था सूफिल फसाद अर्दिल। वाला हाँ जी बिल्कुल। फिया, अब है यस्फी कुद्दिमा, ये एक नया लफ्ज आएगा, लेकिन ये भी नया नहीं होगा इंशाल्लाह। भी हम एक एक लफ्ज देखते ना, तो इन दोनों लफ्जों को भी हम देख लेंगे। इसके बाद वाव पड़ा हुआ, नहनु, बहुत बार पड़ा हुआ, नुसब्बिहु, हम ये भी सब QC3 भी में हूँ पढ़ना है, लेकिन तस्बीह वगैरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बिहमदी का, ये भी हमारा पड़ा हुआ। नुक़द्दिस, अच्छा जी, बैतुल मक़दस वगैरह, ये हम उसी से पाक से रिलेट कर सकते हैं ना। और ये वाला जो टेबल है ना, ये भी QC3 में आएगा, ये भी पड़ा हुआ। अब इसके बाद ये तो सारा ही हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक हो गया। अ, जी, अब हमें सिर्फ दो लफ्ज ऐसे नजर आए हैं जिनको हम अब दोबारा जब अपने तर्जुमे पे आएंगे ना, उसमें एक एक लफ्ज वाले में इनको खोलेंगे, तो ये भी इंशाल्लाह। तब तक आप सोच लें इसके बारे में, अगर याद आ जाए तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। इसका पहले रोमा तर्जुमा देख लेते क्या है। और जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या तू बनाता है उस जमीन में उसे जो फसाद करेगा इसमें और बहाएगा खून। फिर वो फरिश्ते दोबारा से इतनी बात कह के कह रहे हैं, और हम तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ, और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। तो फरिश्ते क्या मतलब सवाल कर रहे हैं अल्लाह से कि देखें ये जो जमीन पर इतना फसाद वगैरह फैला हुआ सब कुछ, तो फरिश्ते कह रहे कि ये जो अल्लाह ताला ने मट्टी से बना दिया इंसान, ये तो जाके उसने फसाद बनाना है, तो इबादत के लिए हम काफ़ी नहीं है कि देखें जो तस्बीह करते हैं, तारीफ करते हैं अल्लाह ताला की, जैसे कहते हैं ना जो कयाम कर रहे हैं वो कयाम करेंगे कयामत तक, जो रुकू में है रुकू करते रहेंगे, जो सुजूद में है वो सजदे करते रहेंगे। तो उनकी इबादत की तरह तो हम इबादत कर भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जिस चीज़ का हुक्म दे दिया वो उससे टस से मस नहीं होते। ये इंसान है ना जो कितनी नाफरमानियां करता है, ख़ास तौर पर नमाज, नमाज के मामले में तो ऐसे हो जाते हैं हम, बीमारी हो, कोई फंक्शन हो, शादियां, ये वो सब, नमाज को हम साइड पे कर देते हैं। नमाज फ़र्ज़ है, हर हाल में फ़र्ज़ है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ेंगे, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ेंगे, नहीं तो इशारे से पढ़ेंगे। और अगर कभी दिल में ख्याल आता है ना
कि मुझसे सजदा नहीं कर रहा तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा नमाज का, ये क्या हुआ, मैं तो सजदा ही नहीं कर पा रही। तो सोच लिया करें, समझ लिया करें, शैतान का वसवसा है, शैतान चाहता ही नहीं है। क्योंकि सजदा जो है ना, इंसान अपनी पेशानी, अपना सबसे मुकद्दस जो हमारा जबीन जो है ना हिस्सा, वो ज़मीन पर अल्लाह ताला के लिए लगा देता है, सजदा करता है। अगर अल्लाह ताला सजदे की तौफीक आपको सही सही उम्र में, अपनी जैसे जवानी में दे रहा है, तो ज़रूर बिल ज़रूर फ़ायदा उठाए, इससे पहले कि सजदा करना मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाए कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी बताया कि इशारे से पढ़े। अब ये जो इबलीस था, ये क्यों निकाला गया, इसने एक सजदा करने से इनकार किया था। तो ज़रूर बिल ज़रूर अपनी नमाजों की हिफाजत करनी है। पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कहीं कभी भूल चूक हो जाती, बंदा बशर है, अल्लाह ताला से तौबा भी करनी और लौटाया भी करें अपनी नमाजें। अल्लाह ताला हम सबको, मुझ समेत हम सबको नमाज़े पंजगाना पढ़ने वाले बनाए, और हमारे बच्चों को भी। अच्छा जी, इज़ कौला, और जब फरमाया। अच्छा जी, अब देखें, कौला हमने पहचान लिया कि ये कौला वाहिद की बात हो रही है, गायब की बात हो रही है। और हमें ये भी पता चल रहा है ना, कौला इज़ कौला रब्बू का, तो ये किसने कहा होगा, ये कौन, इसको यानी ये कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला ने रब्बू का। कहा। ठीक है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया। अच्छा, इसके लिए कौला के लिए एक और आज आप टिप ले लें, हिंट ले लें। कौला में आपको एक ली नजर आया करेगा जिससे बात की जाती है। ठीक है, तो कौला रब्बू का लिल मलाइका, ये जो रब्बू है ना, रब्बू, ये हमारा फाइल भी बन रहा है ना, कैसे ये सब्जेक्ट बन रहा है, हमें ये दोमा भी तो नजर आ रही है ना, पेश नजर आ रही है। ये इसके साथ जुड़ के आया, ये इंशाल्लाह ये हमने ना इनको नामों के साथ सीखना है। वैसे हम इसको सीख के आए हैं, देखो रब्बू हूँ, रब्बू हम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुक है ना, रब्बी इनके रब्बुना पोजेशन जी शो हो रही है, किसका रब है, जी तेरा रब। ठीक है, तेरा ये का नबी आ गया करीम, ना। बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है ना, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये बताया ना, और जब फरमाया अल्लाह ने लिल मलाइका, अब कहना हो ना कि मैंने कहा, जैसे कोई भी नाम ले ले, जैसे कहूँ, मैं कहूँ मैंने कहा आपसे, तो मैं कहूँगी कुल तू लका, या लकी, आप जैसे मोहन्नस है तो लकी कह दूंगी मैं। अगर मैं जैसे कहूँ कि कुल तू ली जैदिन, मैंने कहा जैद से। अब जिससे कहनी है ना बात, उसके लिए ली हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं, तो ली का जैसे सिला आ जाता है। ठीक है, जो प्रेपोजिशन यूज होती है ना, तो आप ये इसके ऊपर लिख लें, आप अपनी बुक पे लिख लें, या कहीं नोट्स आप बनाएं, लिखें, उसमें इस तरह से शुरू कर लें कि अफ़ाल और उनके सिले। तो कौला के साथ हमें नजर आया करेगा ली, जहां पर जिससे कहना है, जिससे बात करनी है, उसके साथ आपको ली की प्रपोजिशन मिला करेगी। अच्छा जी, रब्बू का भी हमने खोल के देख लिया कि पूरा टेबल बनाया जा सकता है, दो अस्मा है, यानी कि एक इसम ज़मीर और एक नाउन, हम रब को पहचानते ही हैं। इसके बाद ली और मलाइका, मलाइका फरिश्तों को कहते हैं। हमने ये अपने क्यूसी वन में भी किया था ना, तो मलाइका बच्चियों का नाम भी रख दिया जाता है, यानी कि बहुत सारे फरिश्ते हमारे घर से पैदा हो गए। तो ऐसे नामों से भी ज़रा थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। जैसे है, हमारी फैमिली में भी है मलाइका नाम, और प्यारा लगता भी है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम मानों पर गौर करके रखा करें, और करना भी चाहिए, ख़ास तौर पर अब जब आप सीखने लग गए हैं, तो ज़रूर बिल ज़रूर देखा करें। इन्नी, इन्ना का पूरा आप टेबल बना सकते हैं, जैसे इन्नाहु, इन्नाहुम, इन्ना का, इन्नी, इन्नाकुम, इन्नाना, और इन्नाहा। यानी कि ये हरूफ के, जो हरूफ के साथ भी टेबल जैसे हमने बनाए थे, मिनहू मिनहुम वाले, इस तरह से भी टेबल बनाए जा सकते हैं। ये जो जमायर है ना, जो जुड़ जुड़ के आते हैं, असमा के साथ भी जुड़ जाते हैं, अफ़ाल के साथ भी जुड़ जाते हैं, हरूफ के साथ भी जुड़ जाते हैं। इसके बाद बताया कि बेशक मैं जाइलुन, बनाने वाला हूँ, फी और अर्ध, हमने कहा था कि अभी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके पूरी तरह सीखना है कि इनको कहते क्या है। लेकिन अक्सर आप देखा करेंगे कि जब हरफ जर आपको नजर आता है ना, ये जैसे ये भी नजर आ रहा है, सॉरी ये वाला, तो ये जेर नजर आ गई, ये हरफ जर नजर आया तो ये जेर नजर आ गई। ठीक है, तो इसको बस ऐसे एक टिप के तौर पे याद रख लें। और जहाँ कहीं
آپ کو حرف جر بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو ایک جو کھڑکی ہے کھلی رکھنی ہے، وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی رول اپلائی ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھ لیا کریں۔ اس کے بعد ہے خلیفہ تن۔ اچھا، اب یہ جو نا کوئی خلیفہ، کوئی ایک خلیفہ، اس طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے جب ہم تنوین دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ ال اور تنوین والے اسما ہوتے ہیں، اور ترجمے پہ غور کریں تو لکھا ہوا ایک خلیفہ، ٹھیک ہے؟ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، اب قالو، انہوں نے کہا، اب یہ کون ہے کہنے والے؟ یہ کون ہے؟ یہ فرشتے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم تھوڑی سی وہ والی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ یہ ماضی ماضی کا ہی ہے، ماضی ہے، ماضی ماضی کا سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ واحد ہے یا جمع جمع ہے؟ جمع ہے، جمع 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 ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ایک سبجیکٹ چھپا ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ ہوا، ہم، ہما انتا، انا، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ہم اس میں کیا چھپا ہم ہوا ہے؟ ہم اس میں ہمارے پاس ہم چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ کون، کیونکہ جب فرشتوں سے پیچھے بات ہو رہی تھی نا، ہم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جو ہم بہت سارے تھے یہ فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو آ، ہم نے سمجھ لیا کہ کیا ہے؟ یہ سوال کے لیے، ٹھیک ہے، آ، اور اس کے ساتھ آگے ہے، اور لکھا ہوا یہ ایسے ہی ساتھ ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم نے پہچانا کرنا ہے ترجمے سے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ افعال ہمیں یہ جو خاص طور پہ اپنی طرف والے، اس میں اگر تا والا کوئی نظر آ گیا تو یہ نہ ہو کہ اس کو دیکھ کے ہم اسے بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ سوال ہے، بعض دفعہ وہ یہ اپنی طرف والا ہوگا۔ تو ترجمے ساتھ ساتھ رکھنے ہیں، ترجمے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری ہیلپ مل جاتی ہے۔ تو تجالو جعلا کا ٹیبل، جائلون بھی اس میں سے آ گیا، تجالو بھی اس میں سے آ گیا، کہ کیا تو بناتا ہے، فی ہا، فی کا پورا ٹیبل ہم کر کے آئے، فی سبیل اللہ سے۔ اچھا، اس کے بعد من ہم نے سمجھ لیا کہ دو معنی ہے، یفسدو کا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں اپنے QC2 میں ہی، لا تفسدو فی الارض، یہ بھی ہم نے دو پڑھے۔ اب یہ جو مفسدون، یفسدو، یہ والے ٹیبل ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے اپنے ٹیبل کرنے ہیں QC3 میں، تو جو QC3 میں کرنا ہے وہ ہم ٹیبل انشاءاللہ QC3 میں سیکھ لیں گے، لیکن ابھی ہم اس کو فساد سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہم پیچھے جو پڑھ گئے تھے، بے شک یہی وہ لوگ ہیں، اعلیٰ، یعنی کہ خبردار ہو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد مچانے والے یا فساد پھیلانے والے ہیں۔ لا تفسدو، مت پھیلاؤ یا مت فساد مچاؤ، پھیلاؤ، جو بھی بعض دفعہ قرآن مجید کے ترجمہ میں بھی الگ الگ ہوتا ہے، ہم نے پھیلاؤ والا ترجمہ کیا تھا، تو اس کو ہم فساد سے یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے فیہا، دوبارہ سے آ گیا، اس کے بعد واو الگ ہے، اس کے بعد ہے یسفکو۔ اگر میں آپ کے سامنے لکھوں، کبھی کبھی میرا پین تھوڑا سا رونگ جگہ پہ چل جاتا ہے، چلیں جی، ہم نے یہاں چلانا ہے، یہ روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، سین، فا اور کاف۔ کوئی اردو کا لفظ یاد آیا ہو کسی کو؟ صفاق صفاق، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس پر تو میں لکھ الحمدللہ۔ کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے سمجھنا شروع کیا روٹ لیٹر کے ساتھ، میری تھوڑی تھوڑی آنکھیں بھی بھیگ گئی ہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ، یعنی کہ جو ہم آپ کی صفات محنت ہم سب کی محنت، ہم سب کی محنت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کاف ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ وہ ضمیر والا ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اور ضمیر والا جو کاف ہے اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی، کہیں کہیں نا یسفی کا بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں بھی ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ فعل والا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہائے گا۔ پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یا جو ہے یہ تو مضارع کی علامت ہو گئی، پیچھے کیا بچتا ہے؟ سین، فا اور کاف، جیسے ہم نے کہا تھا نا مبارک، تبارک، اسی طرح یسفکو میں بھی صفا کا یسفکو، یعنی کہ یہ اس کا اپنا کاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہوگا کہ کاف ہمیشہ وہ والا ہی ہمیں نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفاق سے ہم نے یہ یاد رکھ لیا، اب صفاق سمجھ لیں کہ بہانے والا، بہت زیادہ بہانے والا۔ تو قرآن مجید میں یہ آگے ہمیں دماغ کے ساتھ خون نظر آ رہا ہے نا۔ اچھا جی، اس کو کیسے ہم یاد رکھیں گے؟ جس نے حج عمرہ کیا ہوا ہے انہیں دیتے ہوگا ہے نا، پتا ہوگا نا کہ جب کوئی دم دیتے
हाँ, हमसे कोई भूल चूक हो जाती या कोई हमसे कज़ा हो जाए तो हम उस बारे में हमें बताया था कि दम देते। दम अब दे। ये दम, वो चावलों को दम देने वाला वो दम नहीं समझना। खून है। हम नहीं, बकरी खून बकरी बहाने, वगैरह हाँ जी दवा बिल्कुल, कर। भूसी का याद आ। बिल्कुल कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी करना। तो एक जी। मेंढे की कुर्बानी है, जिस तरह से आप बाज दफा ये कि पैसे दे दिए जाते हैं, कुछ लोग खुद जाकर वहां पर ये जो कुर्बानी वगैरह करवाते हैं। तो दम से दिमाग याद रख लें कि क्या करेगा, यानी कि आप समझ लें कि जो बहुत ज्यादा खून बहाने वाला होता है, सफाक। सफाक कौन होते हैं? जालिम, जाबिर, ठीक है, उससे याद रख लें कि सफाक कौन है, बहुत ही ज्यादा खून बहाने वाला। क्योंकि सफाक, हमने कहा था कव्वाल, जो बार 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 अपना कॉल रिपीट करी जाता है, सफाक जो बार 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 बहाई जाएगा। और आपको मजे की बात बताऊं कि उसी फोर में जाकर इंशाल्लाह हमने ये वाले अल्फाज भी पढ़ लेने हैं। सफाक हो गया, कव्वाल हो गया, इस टाइप के भी हम समझेंगे कि इनको अरबी में क्या कहते हैं। तो कोर्स किसी सूरत नहीं छोड़ना, हम क्योंकि 7 में हैं, और अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह से नई बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं। पुराना जो पढ़ा सब कुछ वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत हमें आसानी होगी। अच्छा जी, और वो बहाएगा खून, खून का हमने समझ लिया। इसके बाद है वाव, नहनु। नहनु हमारा जाना पहचाना, हमने पहले टेबल में कर लिया था, हम सबकी बात हो रही है। ठीक है। जी। नुसब्बिहु, जैसे हम कहते हैं नशहदु, हम कहते हैं नाऊजु, ठीक है, नाअबुदु, नस्तईनु। तो नुसब्बिहु भी हम तस्बीह करते हैं, ये जो नून है ना, ये वही वाला नफअलु वाला, ठीक है, हम तस्बीह करते हैं। अच्छा, बिहम्दी के अगर मैं आपसे पूछूं टुकड़े करें। बा को अलग करेंगे, हमद को अलग करेंगे और का को अलग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब ये वाला का इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। बी हम्म। हमदी का। अब ये देखें, यहाँ भी बी नजर आया ना, हरफे जर, और ये हमें जेर नजर आ गई। इसको बस आपने नोट करते जाना, अभी आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, ये जो छोटी सी प्रैक्टिस है ना, आपको कुरान मजीद में बड़ा मजा आएगा। जहाँ कहीं आपको चेंज नजर आए ना, बस अलर्ट हो जाए कि हमने इसके बारे में इंशाल्लाह सीख लेना आगे, ठीक है। इसके बाद नुकद्दिसु। नुकद्दिसु अभी क्योंकि हमने टेबल किया नहीं है, लेकिन इसको हम काफ, दाल और सीन से याद रख लें, कुद्स भी बन सकता है, ठीक है। नाम रखा जाता है मुकद्दस, अल्लाह ताला का नाम भी है। ठीक है। और बैतुल मक़दस, और कुद्दूस। कुदसिया भी रखा जाता है, कुद्दूसी भी रखा जाता है। कुदसिया। अच्छा ये ना, अब आपको याद आया है कुदसिया बानो और कदूसी साहब जी। की बेवा, है ना। ये अब आपको ड्रामे भी याद आ रहे हैं, चले कोई बात नहीं, वो जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल। अच्छा जी, और मुझे ना एक कोई, हाँ, अल कुदूस कोई कह रहा था, अल्लाह ताला का नाम भी, जी, अल्लाह का इस सिफत की। ठीक है। अब हमें कितने सारे ये हिंट मिल गए कि अब ये भी हमारे लिए नया नहीं रहा लफ्ज, ठीक है। बस हमने याद रखना है, तस्बीह बयान करते हैं, तारीफ करते हैं, और हम पाकी बयान करते हैं। वो अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं ना अल्लाह ताला को। लका, अब लका किसको कह रहे हैं? लका, लका लिए और का तेरे, हाँ, तेरे यानी लिए। यानी कि अब ये ला तेरे अल्लाह में के कौन है? ये लिए। किसकी किसकी तारीफ करते हैं वो? ये अल्लाह अल्लाह के के लिए। लिए, अल्लाह अल्लाह की, के हम तेरी अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करते अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। हैं। कौला हमारा पढ़ा हुआ। अब ये कौला कौन है? अब यहाँ पे हमने कहा ये फरिश्ते कह रहे हैं, ये कौला, ये ये अल्लाह ताला अल्लाह, कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये अल्लाह कौला। ताला फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इन्नी, इन प्लस नी, इन्नी, दोनों इकट्ठे हुए तो तशदीद दे दी, इस तरह बन गया इन्नी। इन्नी आलमू। अब ये आलमू कहाँ से आया है? बेशक में। ये भी आलिमा आलम के टेबल से। आलम का आलिमा टेबल। के टेबल से। आलम का टेबल। आलम मैं जानता मैं हूँ। जानता हूँ, माँ, जो। अब आलमा यहाँ पर जो हमारा आलिमा, आलम मैं ठीक है, जानता हूँ। मैं अपनी तरफ वाला अल्हम्दुलिल्लाह। माँ, माँ, माँ के 3 माना ला पढ़े, नहीं, यहाँ पर जो वाला यहाँ माना आ गया, माजू और के ये लिए जो होगा। नहीं है, ठीक है। इसके बाद तालमुना कहाँ से आया? ये भी ये भी, ये भी तामल से आलिमा ये के भी टेबल। तामिल। ये तामिल भी से हमारा मिल। तालमुना तालम हाँ, से। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अमीना। ये ये हमारी अमा ठीक है। मुजारिम है। आलिमा, यालमू, तालमुना तालमू, और उसी तालमू को आगे वाव नून लगा के जमा बनाएगी। अगर आपका आमिला और आलिमा आपस में गड़बड़ होता है ना जमा में, तो पहले इतना लिख के देख लिया करें, जैसे मैंने लिखा ना, आलिमा
यालमु। ठीक है, यालमु, फिर आमिला यअलम, और यअलमून। यामलु। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को आगे वाव नून जोड़ लेना है, फिर हमारा ये गड़बड़ नहीं होगा। लाम पहले मीम पहले, ये कभी कभी इकट्ठा लिखना हो ना तो ये गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसे ही होगा कि ये भी गड़बड़ नहीं होगा। अब अल्लाह ताला क्या कह रही, फरिश्तों को क्या जवाब दिया अल्लाह ताला ने कि बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। हमारी जिंदगी में कुछ क्राइसिस भी ऐसे आ जाते हैं ना, हमें वक्ती तौर पर कुछ समझ नहीं आ रही होती, ऐसे लग रहा था जैसे ये कयामत ही आ गई हो, बस कयामत टूट पड़ी हम पर। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है तो हमें पता चलता है इन सब में हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई मसलहत थी, बेहतरी थी। कहते कि बाज दुआएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप रो रो के मांग रहे होते हो, उस टाइम आपको बहुत दुख भी हो रहा था, हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। और एक टाइम के बाद, एक अरसा गुजरने के बाद आप उसी पर शुक्र अदा कर रहे थे कि शुक्र है उस टाइम में वो हमारी दुआ कहीं अल्लाह ताला ने कबूल नहीं कर ली। कहते हैं ना कि बाज़ दफा हम एक कतरे के पीछे रो रहे थे, अल्लाह ताला ने हमारे लिए समंदर लिखा होता है। तो अपनी जो सोच है ना, इसको पॉजिटिव रखें, इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाती है जिंदगी में। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने कहा कि वो ये आदम खुदा ने अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाएगा, यानी कि नाइब बनाएगा। हम जमीन पर इस वजह से नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कोई फल खा लिया था, बल्कि अल्लाह ताला की एक खास हिकमत के तहत है। वो मसीह सारा वाकया वो सच है। शैतान ने बहकाया, फिर हजरत अम्मा हुआ, उन्होंने वो फल खाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रखा। वो एक था, लेकिन इस ये हम ये नहीं कह सकते जो हमने मतलब अपने बचपन में सुना था, कोई गंदम कहता था, कोई कहता था खजूर। तो नाम कोई भी स्पेसिफिक नाम बताया नहीं गया कुरान मजीद में। अब ये नहीं था कि उन्होंने खाया तो अल्लाह ताला ने बस उनको जमीन पर भेज दिया। अल्लाह ताला ने एक लोगों को खास मालूम थी हिकमत ये के बात। तहत, ठीक है, तो ऐसी बातें हमने अपने कॉन्सेप्ट सीधे करने हैं। खलीफा के दो माना होते हैं, पहला क्या, जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है। ठीक है, अब ये हमने, सॉरी इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सवाल करने का मौका इनायत किया, ना कि उन पर नाराजगी का इजहार किया। ठीक है, सुभान अल्लाह। अगर कोई हमसे पूछे या सवाल करे और हमें इसका जवाब मालूम हो तो हमें जवाब देना चाहिए, यानी कि नाक मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए कि ये मुझसे इसने ये सवाल कैसे कर लिया। अच्छा, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि सवाल कर लेना चाहिए और हमें जवाब देना चाहिए। फिर इसके बाद हम कुछ आयत में आगे पढ़ेंगे कि बिला वजह बिला ज़रूरत भी किसी से सवाल नहीं करने, कि वो बंदा परेशानी हो जाए। ठीक है, ये मैं मतलब अपनी और आपकी बात नहीं कर रही, बाज वही होता है ना। अच्छा, बच्चों की बात हो रही थी, बच्चे सवाल करते ना, फिर वो सवाल करेंगे, आप एक दफ़ा जवाब देंगे, दो दफ़ा, बच्चों की बात हो रही है। बाज दफ़ा ये होता है कि हम सवाल कर करके ना अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लेंगे। ये QC 3 और QC 4 में हमने पढ़ना है कि जब बनी इसराइल ने बेजा सवालात किए थे ना, तो उनके लिए आगे कितनी मुश्किलात आई थी। वहाँ पर हम इस बात को ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझेंगे कि बिला ज़रूरत या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करने के भी नुकसान हो जाते हैं। जो क्योंकि सवाल जो है ना, सवाल, इसके अपने सवाल के अंदर ही आधा जवाब छुपा हुआ था, तो इसको आधा इल्म कहते हैं। आपका एक अच्छा पूछा हुआ सवाल, देखिए आपकी पूरी क्लास में अगर जवाब उसका अच्छा सा मिल गया, चाहे वो आपने ग्रुप में एक दूसरे से सवाल किया हो, किसी ने उसका बहुत अच्छा सा जवाब दिया, तो बाकी सबका भी भला हो जाता है। अच्छा, फरिश्ते इस बात पर बहुत हैरान थे कि इंसान खून बहाएगा और ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़मीन में होगा। यही वजह थी कि उन्होंने इंसानों की तख्लीक के पीछे छुपी हुई हिकमत को जानने के लिए सवाल किया, ना कि एतराज़ करने के लिए सवाल किया था। ठीक है, इन चीज़ों को हमने समझना है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि तस्बीह और हम्द, इसमें फ़र्क क्या है। हमने QC 1 में भी थोड़ा सा इसको टच किया था कि ये जो हम्द होती है इसकी अल्लाह ताला की तारीफ होती है, और तस्बीह क्या होती है, ये नकाइस की नफ़ी होती है कि अल्लाह ताला के अंदर किसी तरह का कोई भी अल्लाह ऐब क्या क्या मौजूद नहीं। ठीक है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला, अच्छा हमें अनहो कहना चाहिए कि अनहा कहना चाहिए? अनहु कहना चाहिए, अनहु, और बिल्कुल, अनहा जो है वो हम मोनस के लिए। मुअन्नस के लिए। ठीक है, तो ये भी हमें बड़ा फायदा हुआ है अपने QC कोर्सेज से कि हमें ये वाला फर्क भी समझ आ गया। अच्छा जी, हजरत अबू रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा कलाम अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए या बंदों के लिए चुना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। और इसके आगे एक छोटा सा और भी जोड़ते हैं ना, वो क्या है,
سبحان सुभान اللہ अल्लाह। सुबहान العظیم अल्लाहिल अज़ीम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस तरह से भी आपको रिवायात मिल जाएंगी। ये आपको साथ ना कोड की जाती हैं, जो अहादीस के नंबर वगैरह, इसको चेक भी किया करें, ठीक है। यानी कि ये बहुत मीज़ान में, कहते हैं ना कि जुबान पर हल्का है, लेकिन मीज़ान मीज़ान के ये में बहुत पलड़े में भारी इनका। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल करते रहना है कि हम तस्बीह भी ज़रूर करते रहा करें। तस्बीह और हमद बेहतरीन ज़िक्र है, इसको समझ कर किया जाए तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। इससे हमारे दिल में अल्लाह के बारे में सही तसव्वुर बैठता है, शैतानी वसवसे दूर होते हैं और अल्लाह से मोहब्बत पैदा होती है। आप देखिए, दुनिया में कामयाबी के लिए इंसान के अंदर, ये जो अभी मैंने आपसे बात की थी कि अपना क्या कर जरूरत पड़ी। रवैया पॉजिटिव रखें। आपको मतलब कोई चीज़ ऐसे लग रही होती है ना, बाज़ दफ़ा मुश्किल हालात आते हैं, तो उसमें क्या करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसानों के लिए जो सुकून है, कल्ब का जो सुकून है, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से है ना। तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, नमाज़ें छोड़ के कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनने लग जाने। नमाज से, कुरान से जोड़ेंगे ना अपने आप को, तो इंशाल्लाह वक्त भी गुजरना आसान हो जाता है। और ये कि हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड जैसी अहम खूबियाँ पैदा होती हैं। किससे पैदा होती हैं? जब हम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करेंगे, हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेंगे। और ये जो अ, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर मेरे ज़हन में आता है दोबारा तो। अच्छा, हम कहते हैं ना कि शुक्र में खुद को डुबो कर सोएं। इसका क्या माना है कि अपना खुद पूरे दिन का एहतसाब कर लिया करिए, आज मैंने क्या-क्या अच्छे काम किए और क्या-क्या मुझसे बुरे काम सरज़र्द हो गए। बाज़ दफ़ा इंसान नहीं भी चाहता ना, वो इतना खपा सता हुआ होता है। बाज़ दफ़ा बच्चों से ही बंधा हुआ हुआ था परेशान, तो किसी के साथ कोई बुरा-सा बोल लिया। तो ज़रूर कोशिश करनी है कि अपना जो कल आने वाला ना, उसको बेहतर कर लें। क्योंकि कल के लिए हमारे पास चलें, हाँ, अगर हम सुबह उठते हैं तो एक और दिन हमें मिल जाता है ना, तो अल्लाह ताला का सबसे पहले तो शुक्र वहीं पर अदा करना कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन अता फरमाया, तो उसको अब हमने ज़ाया नहीं करना। तो अपने आप को, जितनी आपको पूरे दिन में अल्लाह ताला की नेमतें मिली, और आप देखिएगा कि जो हमारी शिकायतें हैं ना, ये कम होते होते ख़त्म होना शुरू होंगी, अगर हम हमारे अंदर शुक्र वाला जज्बा पैदा हो जाए ना। क्योंकि देखिए, जिनसे हमें शिकायत होती है ना दुनिया में भी, उसी के बारे में थोड़ा सा अगर बंदा ये सोच ले ना कि इससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले थे, या इस शख्स से, किसी से हमें क्या क्या फ़ायदे मिले हैं, तो उसमें भी बंदा ये होता है कि शुक्र करने वाले जो जज्बात पैदा कर लेता है अपने अंदर। तस्बीह किस बात का ऐलान है कि अल्लाह ताला तमाम नकाइस से पाक है, उसके कलाम में या काम में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं। हम इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ताला तमाम अच्छी सिफ़ात और ख़ूबियों का मालिक है। अल्लाह ताला ज़ात में, सिफ़ात में, हुकूक में, इख्तियारात में वाहिद व यकता है। यानी कि इंसान की कोई भी सिफ़त, वो कितना भी अच्छा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम से, तमाम मखलूक़ात से बरतर है। अच्छा जी, तकदीस ये है कि अल्लाह ताला को पाक करार दिया जाए और वाहिद माना जाए। अल्लाह ताला के बारे में किसी भी किस्म का कोई भी शक, शुबा, शाइबा अपने ज़हन में ना लाया जाए। ठीक है? बाज़ लोग कहते हैं कि दुनिया में जगह-जगह खून खराबे, ख़ास तौर पर ये देखें ना फ़लस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, तो अल्लाह क्या कर रहा है? इस बात को दलील बनाकर कुछ लोग मज़हब का ही इनकार कर बैठते हैं। अल्लाह ताला देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़रूर बिल ज़रूर फ़तह याब भी करेंगे। और देखिए, बहुत सारी बातें जब हम कुरान को समझ के पढ़ते हैं ना, हमने इंशाल्लाह इसके बारे में भी आगे-आगे आयत में पढ़ना भी है, या आप तफ़सीर वगैरह में पढ़ के भी आए होंगे, पढ़ा भी है कि इंशाल्लाह जो एक दिन हक़ का ही है ना, बातिल का तो नहीं हो सकता, होगा इंशाल्लाह। और इसके लिए इंसान को कितनी कुर्बानियाँ, क्या कुछ करना पड़ना, ये हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। अच्छा, अब इस बात को ज़रा सोचिए कि ज़मीन में फ़साद और खून खराबे के बारे में फ़रिश्तों ने पहले ही पूछ दिया। उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये नहीं फ़रमाया था कि ज़मीन पर खून खराबा होगा, बल्कि ये फ़रमाया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे छुपी हिकमत को हम नहीं जानते और ना ही समझ सकते हैं। जबकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है और हर चीज़ से, हर एतबार से बाख़बर है। वो ज़मीन पर होने वाले हर अच्छे बुरे कामों से खूब वाकिफ़ है। तो बच्चे भी अगर हमसे सवाल करें ना, तो उनको मतलब खाने को नहीं पड़ना, आराम से जवाब देना है कि अच्छा ठीक है। बाज़ दफ़ा बच्चे किसी चीज़ के बारे में ज़िद कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी डिमांड्स कर देते हैं, तो ये जो कुरान पाक से हम समझते हैं ना,
इसको अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे लाना है कि हम उन जवाबों को देखें कि देखिए अल्लाह ताला ने उनको कोई सज़ा तो नहीं दे दी सवाल करने पर, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब इसी तरह आगे हम इंशाल्लाह अगली आयत में कुछ पढ़ेंगे कि जो जिस बात का आपको इल्म नहीं है ना, उसके बारे में आपने ये नहीं समझना कि अब ये क्या सोचेगा कि मुझे अब यही नहीं पता, बल्कि सुबहान अल्लाह कह देना है। जैसे आप लोग, बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हम उनको क्या जवाब देते हैं कि हम अपने टीचर से पूछ के बताएंगे ना, क्योंकि हमने तो ये इधर से ही सीखा है ना, हमने कोई आइमा के कोर्स तो नहीं किए हुए। क्योंकि जिन्होंने माशाल्लाह से अपनी पूरी पूरी जिंदगियां लगाई हुई हैं, हम उनकी तरह तो नहीं आपको आंसर कर सकते। तो बताया जाता है कि ये कोई फतावा की क्लास नहीं है, ये तजवीद की क्लास नहीं है, तफसीर की क्लास नहीं है। हम जो सीख रहे हैं बस उतना ही सिखा सकते हैं, जो हमें नहीं पता हम कहेंगे सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला सब जानता है, अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला ही जानता है। तो हम क्या करते हैं, आपके सवाल आगे पहुंचा देते हैं, फिर जो जवाब आते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने तर्जुमा बहुत अच्छे से देख लिया, अब असबाब देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाएगा। फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया। अल्लाह ताला को पहले से इल्म था कि ज़मीन पर खून खराबा होगा। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, उसे मालूम कि ज़मीन पर कौन से अच्छे काम किए जाएंगे। अच्छा जी, तकदीर के बारे में बहुत से लोगों को हो जाती है ना कन्फ्यूजन, तो बाज़ दफ़ा यही समझा करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिखी तो है चीज़ जो भी हमें मिलनी है। हो सकता है लिखा ऐसी हो कि हमने खूब दुआएं मांगनी है, खूब अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हमने जिद करके मांगना है, तो वो चीज़ हमें तब मिलनी थी। तो जो ना मिले, कहते हैं कि दुआएं जो होती ना, दुआएं ये जब हशर में ये फूलों के गुलदस्तों की तरह हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगी, और क़यामत का दिन ऐसा होगा कि इंसान अपनी छोटी छोटी जो नेकियां होगी ना उनको देखकर खुश हो रहा होगा, इतनी ज़रूरत होगी नेकियों की। अब हम अपनी जो आयत हैं जो हमने पढ़ी उससे रिलेट एक दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआएं अपनी तरफ से भी की जा सकती हैं, जो लिखी हुई दुआएं होती हैं ना ये आपके होमवर्क्स में काम आती हैं। और एक और चीज़ का ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता है ना कि किस तरह से हमने अपनी जो आयत वगैरह पढ़ी थी उससे रिलेट करके दुआएं कैसे मांगनी है। ऐ अल्लाह, हमें बिगाड़ और फसाद फैलाने वालों से बचा, हमें ज़मीन पर अमन और सलामती फैलाने की तौफीक अता फरमा, हमें तेरी हमदो तस्बीह बयान करने की तौफीक अता फरमा। तो इंशाल्लाह इस अगर आपको कुछ और मज़ीद दुआएं इससे रिलेट होती समझते हैं कि मैं इसमें से ये भी दुआ निकाल सकती हूँ, ये भी दुआ की जा सकती है, ज़रूर बिल ज़रूर करें। ये जो एक जैसी दुआएं आपको होमवर्क में काम आएंगी, आपको क्विज़ेज़ में से इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये एक समझ लें कि आइडिया मिल गया। इस तरह हम दुआएं कर सकते हैं और इस तरह हम प्लान भी अपने लिए खुद बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की खूब तस्बीह और हम्द करूँगी। नमाज में तस्बीह भी है, हम्द भी है, सजदे भी हैं, दुरूद भी है, दुआ भी है। तो अगर हम इंशाल्लाह 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 नमाज़ें पंजगाना और उसके साथ साथ जो मज़ीद नवाफिल वगैरह होते हैं, नमाज़ें तहज्जुद है, अवाबीन है, इसी तरह से चाशत है, और एक और नमाज इशराक से निकल इशराक। जाती है। बिल्कुल, इनका भी इशराक। एहतमाम कर सकते हैं। तो जब फ़राइज़ कम हो जाएंगे ना, जब हमारे नामा अमाल तोले जा रहे होंगे, फ़राइज़ कम हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि देखो इसके पास नवाफिल हैं, तो फिर वो उनसे उनको पूरा किया जाएगा। तो ज़रूर बिल ज़रूर इन चीज़ों पर भी हमने गौर करना है। जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की तो कोई छूट नहीं है ना, फ़र्ज़ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं ना, जो मतलब फ़र्ज़ नमाजें हैं। अच्छा जी, अस्मा और अफ़ाल अब देख लेते हैं। मलाइका, अब हमने क्या करना है, इनकी जो वाहिद जमा भी देखी है ना, मलक मलाइका, हमने एक पूरा 4 लफ्ज़ों वाली एक स्लाइड देखी थी, एक जैसे मिलते जुलते, तो मलकुन मलाइका। अच्छा जी, ये जो है ना मलाइका के आगे जो गोल ता है ना, ये मुअन्नस नहीं है। ठीक है, मुअन्नस की निशानी के लिए क्या करना, हमने वाहिद पे आना है। ठीक है, अब अगर ये होती गोलता वाली, अगर ये मुअन्नस होता तो इसकी मलाकात होती ना, इस तरह की कोई जमा थी। तो ये एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। ठीक है, ये क्या है, मुज़क्कर है, इन चीज़ों को ख़ास याद रखना है। ठीक है, ये मुज़क्कर है। बोलता फिर क्यों है? ये एक कह लें कि एक वज़न है ये भी, हमें बहुत सारी जमा भी ऐसी मिलेगी। ठीक है, मुज़क्कर की हमें बहुत सारी जमा ऐसी मिलेगी कि जो गोलता पे ख़त्म होती है। ठीक है, मैं ये कह रही कि इसको आपने मुअन्नस नहीं समझ लेना, कि आप देखें आप जहन में आ जाए कि ये गोलता है, शायद ये वाहिद मुअन्नस है, तो ये वाहिद नहीं है, ये जमा है। और गोलता वाली, अब देखें, अब ये खलीफा जो है, अब ये गोलता पे है, तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना देखने में कि ये जी। मुस्लिमातुन की तरह है। अब इसकी जमा पे आ ओके। जाए, ये मुस्लिमातुन की तरह खलीफातुन तो नहीं है ना, फिर वो हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये मुअन्नस है।
खलीफा उर्दू में भी हम मुजक्कर ही पढ़ते हैं ना, मुजक्कर ही है ये भी। एक इसकी जमा खलाइफ है और एक इसकी जमा होती है खुलाफा। खुलफा। हाँ जी, जैसे खुलफाए राशिदीन है ना, हमने पढ़ा भी हुआ है। खुलफा बराबर। दम दिमाऊ, ये जो दम हम बात कर रहे थे ना, दम दिमाऊ। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं फतह नसर और दरबा सामिया पर आने वाले कौन कौन से अफ़ाल है इसमें। जाइलुन, जाअला यजअलु, जाअला यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन और जाअलुन। ठीक हो क्या, ये फतह की तरह है। सफका यस्फिकु, सफका यस्फिकु, नया देखें ना तो दो बार माजी मुदारे मिला के इसको पढ़ा करें, ठीक है। अब आप देखें कि मार, मार जो पड़ती है, ठीक है, वो भी दो अद से है। सफाकी भी, ये भी दो अद से आ गया। और एक आज वो हफ्सा की क्लास में कुछ ज्यादा का कह रही थी एक सिस्टर के, मुझे याद नहीं होता, मैंने कहा आप इसको रिलेट कर लें कि ज्यादा भी दो अदबाब से है और द्वाराबा, तो अब जो नहीं याद करेगा ना उसको फिर ज्यादा मार पड़ेगी। मैंने कहा अब नहीं आपको बोलेगा ज्यादा ये जीदो, तो अब ये ज्यादा ज्यादा मार पड़नी। और आप देखिए मैंने उस दिन बात की थी ज्वाला माँ, वो भी दुआत से है। उसके बाद जो सब्र करना वो भी दुआत से ही करना है, ठीक है। सब कुछ जुल्म सह के, ज्यादा मार खा के, सफाकी बर्दाश्त करके सब्र करना है, ठीक है। साफा का यस्फिकु, इस्फिक, साफिकुन, मसफूकुन और सफकुन, मसकून। ठीक है। और उसके बाद फिर रजा यरजिऊर, अब रजू भी फिर टीचर की तरफ दोबारा करना है, ठीक है। तो ये सारा मिला के इसको बना ले इंशाल्लाह, कभी ना भूले। अब अलीमा यअलमु, इअलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। ठीक है क्या जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौला हमने बार बार पढ़ा, कौला यकूलु, कुल, कौइलुन, मकूलुन, कौलुन। ये इसका मेन बाब देखें तो नासरा है, और कोड देखें तो ये अपना कोड खुद ही है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कुरान पार्ट हुआ कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं कोर्स 2, सफ़ा नंबर 5 और इशारा ए में अपने कुछ और मज़ीद अफ़आल का इयादा। आसानी हुई भी है ना, सारा हम पढ़ के आए हैं, अब हम सिर्फ इयादा करते जा रहे हैं। अच्छा जी, कौला, ज़ादा, खौफा, आज इन स्टाइल पर आने वाले अफ़आल का हमने इयादा करना है। क्या नहीं भूलना, 4 दरवाजे हैं, हम मस्जिद में जा रहे हैं, 4 दरवाजे हैं, समझ लें कि 4 तरह के आप लोगों ने ना वो पहने हुए हैं, ये जो हिजाब अबाया वगैरह 4 रंगों के पहने हुए हैं। बता दिया कि ये जो ग्रीन वाले उसमें चले जाएं, ब्लू है, किसी ने ब्लैक पहना है, किसी ने मैरून पहना है, ठीक है। अब कोई चले जाएं फतहा में, कोई नसरा में, तो यानी कि 4 दरवाजों में हमने जाना है, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु, द्वरबा यद्रिबु, सामिआ यस्माउ। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतहा नसरा, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो, द्वारबा सामिया। ये जो हम छोटी सी फ्रेज याद रखते हैं, याद करते हैं, इसका फायदा हमें ये हो जाता है, फतह, नसर और दौराबा सामिया, 4 हमें अबवाब याद हो गए। 2 मजीद हैं, वो हमने QC4 में करने हैं, वो कुरान मजीद में कम यूज हुए हैं, उनके ऊपर आने वाले कमजोर अफाल भी कम है। तो अब क्या करना, उनको हमने थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो फतह, नसर और दौराबा सामिया, इनकी तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये 4 बाब तो समझ लें जैसे 2 का टेबल सबको आता है ना, कि हमारी जुबान को, हमारे जहन को पता है कि इसका अगला अगला जवाब क्या है, ऐसे होना चाहिए। इसके बाद हमने कमजोर अफाल के लिए सीखा, कोई मुझे बताए क्या सीखा हमने, इसके लिए कौन सी फ्रेज याद की। मैं इशारे करूंगी। अल्लाह ने अता किया, अल्लाह अल ने देने का वादा हाँ, किया, वादा किया, वहाबा वादा, और कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए वो हिदायत दुआ करो, करो। दुआ की, दआ, हदा। और ये है कि अच्छा गुमान रखो, वरना भटक जाओगे, वरना वल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ठीक है, अच्छा और ये याद हो हमें गया। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वो लफ्जों में उलट पुलट हो गया, आपने कहा था दुआ करो, दुआ की तो हिदायत की दुआ करनी है, ठीक है, सिर्फ दुआओं हिदायत। की दुआएं नहीं करनी। जी। अच्छा जी, तो ये हमें साथ साथ अब ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये कोड है, ठीक है। अब हमने इसमें जी। शामिल करने हैं, जैसे कौला के साथ हमने काना भी किया, जाका भी किया, ताबा भी किया, वो हमने साथ साथ अब छोटे छोटे लिखते रहने अपने पास। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट करा लें, उसके साथ साथ लिखें, नहीं तो बुक पे लिखा होता है ये सारा कुछ, ठीक है, बुक पे मेरे ख्याल से पीछे लिखा हुआ है ना ये सारा, उसके साथ छोटा छोटा जी। छोटा छोटा लिख लें, हमने भी ऐसे ही किए हुए। बल्कि QC2 तक हमें पता नहीं था कि ये किताबें हमने बेचनी नहीं है, बल्कि हमें ये हमारी हो गई, हम लिख सकते हैं, हमने ऐसे साफ साफ रखी थी
QC3 में हमारे साथ किसी एक सिस्टर ने ग्रुप में अपनी बुक का पेज शेयर किया था। हमारी तो आंखें खुली रह गई थी, अच्छा किताबों पे हम लिख भी सकते हैं। यानी कि हमने इतने एहतराम से अपना QC2 कंप्लीट किया था, QC1 कि हमने उस पर एक कोई, मुझे लगता है कि फुल स्टॉप भी नहीं डाला होगा। फिर पढ़ाते हुए हमने बहुत कुछ उसके ऊपर लिखा। तो किताब पे लिखने का, इसी तरह हम तजवीद की क्लास में कहते हैं कुरान मजीद के ऊपर लिखा करें, आपको पूरी जिंदगी के लिए याद हो जाता है। जब आपकी नज़र पड़ेगी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं। हम इसलिए आपको बार बार बताते हैं, साथ साथ बताते हैं कि ज़रूर लिखें, अपनी बुक्स पर लिखा करें। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। हमारे कोड भी हमारे पास आ गए। अच्छा, कोड बोलने में वह मुश्किल होते हैं कहने, तो कोड वहाबा, कोड वादा, कोड कौला, ऐसे याद कर लिया करें। अच्छा जी। मैंने ऐसे ही लिखे। अच्छा, हाँ सही है कि जैसी आसानी हो, ठीक है ना। अब फायदा क्या है, आपको कौला की तरह कोई सा भी रूट लेटर दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि आपने कौला या कुल्लू की तरह बनाना है, आपके पास यानी कि कोड जो है वो कौला है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब नासारा पे जाने की। नहीं तो फिर आप अपने रूट्स को लेकर नासारा पे फिट करेंगे, फिर आपने जो तब्दीलियां कौला या कुल्लू में हुई थी वो करनी पड़ेंगी। तो ये एक हमारे पास एक जैसे समझ लें कि हम बार बार कहते होते हैं कि आपके पास एक सांचा बन गया, आप पैटर्न क्या था। करना, बैटर डालते जाएं, आपके केक बन बन के निकलते आएंगे। ठीक है। कौल यकूलु कुल कौइलुन मकूलुन कौलुन। और हमने क्या याद रखना है, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि कौइलुन मकूलुन कौलुन अस्मा है, कौइलतुन मकूलतुन, अल कौइलु अल मकूलु, क़ाइलूना क़ाइलीना मक़ूलूना मक़ीलीना। ठीक है, मक़ूलीना ठीक, मैंने इसको भी सीधा कर दिया था, मक़ूलीना। ठीक है। इसी तरह से क़ाइलातु, ठीक है, मक़ूलातु। इसका मतलब है कि इन दो के साथ हम सारे सीगे बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन कौल को नहीं छेड़ना। ठीक है। उसका नहीं, हमने ना जमा बनानी ना मुज़क्कर मुअन्नस में जाना, मस्तर को बिल्कुल नहीं छेड़ना। अच्छा जी, अब बारी बारी आप लोग पढ़ते जाएं। ठीक है। हैंड रेस करते जाएं, मैं नाम बताती जाती हूँ, एक एक पढ़ते जाएं। अच्छा जी, मदीहा ने सबसे पहले हैंड रेस कर लिया। सिस्टर मदीहा के बाद अगला सिस्टर शबाना पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं और देखती हूँ। चलें सिस्टर, शुरू करें। जी ज़ौक़ा वाला। जी जी। पूरा टेबल क्या मैम, नहीं नहीं चाबियां नहीं खाली नहीं, पड़ी? छः छः चाबियां पढ़ें। ठीक है। ज़ाक़ यज़ूक़ु ज़ुक़, ज़ाइक़ुन मज़ूक़ुन ज़ौक़ुन। जौकुन। उसने चखा। जी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यानी कि इसका माना क्या हुआ, हर नफ्स। तो हाँ, जी। हर जान। नफ्स, यानी कि नफ्स मुअन्नस हम कहते हैं ना अरबी में, जान, यानी कि हर जान चखने वाली है। जाइकुन हम्म, जाइकातुन, हर जान हम्म, हर नफ्स चखने वाली है क्या, मौत को। यानी कि हम इसका उर्दू तर्जमा ऐसे भी कर देते हैं, हर जीरू को मौत है। तो जो सही हमने सीखा हुआ है अपने टेबल के हिसाब से, हम कहते हैं जाइकातुन, चखने वाली, नफ्स कहते हैं जान को। ठीक है। अच्छा जी, अब इससे अगला टेबल करेंगी सिस्टर शबाना। ताब यतूबु तुब, ताइबुन डैश तौबतुन, ठीक है। फताब अलैह। बस, इसमें हाँ, बस उसने, फताब हाँ अलैह जी, और उसने हाँ, तौबा की। उसने इससे तौबा की, तौबा की अलैहि उसकी तरफ। उसकी तरफ, और हाँ नहीं, तौबा करना अलैहि अलैहि उस पर। ठीक है। उस अच्छा, पर। ये जो है ना ताबा, इसको इला और अला के साथ, ये अभी आगे हमने पढ़ना है, अगले दो तीन पेजों में, सॉरी, अगले इशारे में या उससे अगले इशारे में पढ़ेंगे, या ये भी हो सकता है कि QC3 में आ जाए। ठीक है। तो ये ताबा के साथ इला और अला, तो हम कहेंगे जो अला है ना, अला ऊपर को कहते हैं ना, ऊपर को अला ऊपर को कहते हैं। तो जब अला पर वाला होगा तो उसने तौबा कबूल की, यानी कि अब ये अल्लाह ताला के बारे में, अगर ताबा अलैहि होगा तो अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हम मज़ीद समझेंगे जब ये हमारा ये वाली आयत आ जाएगी ना, उसमें बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। चलिए सिस्टर नबीहा ने हैंड रेज किया था आई थिंक। जी। जी। काना यकूनु कुन काइनुन डैश कौनुन। वो था, वो हुआ। व इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। कुन फयाकून। ठीक है, हमें आदत पड़ी कुन फयाकून कहने की, तो ओ फयाकून।
ठीक है। बस ओ बस तो बस यकूलू वो कहेगा उसे कुन फायकुन। अब देखें कौला यकूलू, यकूलू के साथ ला आ गया ना, ल का सिला ली ला ये वही है, ठीक है। अगर हो इस्म हो तो वो फिर ली बन जाता है, जमायर के साथ ला लाहूल, वाला हमने पूरा टेबल भी किया। तो वो उसे कहेगा हो जा, यानी कि अभी अल्लाह ताला कह रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला कहेंगे कुन हो जा, फायकुन तो बस वो हो जाते हैं। अच्छा जी, कौमा को कौन करेगा? सिस्टर आयशा आपका माइक ऑन है, आप कर लें। सिस्टर आयशा फारूकी कौमा का टेबल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ामा यक़ूमु क़ुम, क़ाइमुन, फिर मजहूल में डैश, क़यामुन, क़ौमतुन, वो खड़ा हुआ, क़द क़ामतुस सलाह, कद कामतू नहीं, कद कामतिस सलाह, ठीक है। कद क़ामतुस सलाह। कामतिस सलाह, यानी कि कद कहाँ पर आता है? माजी के साथ आता है। और ये कहाँ था जहाँ हकीक की बात, बस वो जिसको कहते हैं तहकीक, तहकीक खड़ी हो गई नमाज, यानी कि बस अब नमाज खड़ी हो गई है। जो मस्जिद के अंदर है ना, वो बस अब सारे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, जाका का कौन करेगा? सिस्टर बख्तावर आप करेंगी जाका? सिस्टर बख्तावर परवेज, आप मुझे अपनी आवाज सुने? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी कभी। आप करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती? हाँ या ना मुझे जवाब दें। या आप ये जी भी जी मैम, मेरे को कौन सा कह रही हैं आप? हाँ जी, हाँ आवाज जी, में। जी ठीक है, जाका। जी अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर बख्तावर सबसे पहले आती हैं क्लास में, मुझसे भी पहले, माशाल्लाह। चलें सिस्टर शुरू करें। जाका जी, या जाका या जाउको, जुक, जायकुन, मजूकुन, जाउकुन, जौकुन। और कुल इसके लिए नफ्स जायका, कुल्लू जायकातुल नफ्सिन मौत। जायका, ठीक है। अच्छा ये तो वही वाला दोबारा उसने दोबारा करें, इसमें उसने नया क्या कहा, है? नया इसमें माता, माता वाला करें। बाकी तो ये पहले भी हुआ था, मैंने कहा वही रिपीट, वो माता का करें, माता। माता कौन यमूतु, सा? माता वो मरा, सबसे आखिर में जो लिखा हुआ ए माता वाला, नहीं है इसमें, माता यमूतु, माता इसमें नहीं है। ये माता ही माता है। यमूतु मुत, स्टार्ट में मय्यतुन, नहीं, मौतुन। स्टार्ट में नहीं। अच्छा आपका ना मेरे ख्याल से स्लाइड जो भी पिछली वाली शो हो रही, किस किस को ये माता वाली शो हो रही है? मुझे मुझे नजर आ रही है, मैं पढ़ लूं। जी पढ़े, वैसे सिस्टर ने भी पढ़ लिया वैसे। माता पढ़े पढ़े पढ़े, यहाँ मैंने कुछ बताना है। माता यमूतु मुत, मय्यितुन डैश, मौतुन, मिनस माउतुन, सवाति हज़र अल मौत। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो डरते हैं, है ना, वो डरते हैं किससे? मिनस सवाई की, बिजली की कड़क से। किस वजह से? मौत के डर से, ठीक है। हज़ारल मौती, मैंने कहा था इसको इकट्ठा याद करना ताकि हाजिरा वो डरा, हाजा हज़ारल मौत ये मस्तर है, ठीक है। इस पे हमने एक निशानी रखी थी कि जो माजी होगा उसके तीनों पे हरकत होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो रूल है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इसकी जो आगे थोड़ी सी वजूहत इंशाल्लाह जल्दी हमें QC 4 में समझ आने लग जाएंगी, कुछ QC 5 में हम मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि हमें अल और तनवीन क्यों नहीं नज़र आ रही। हम कहते हैं इसम है मस्दर है, लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं नज़र आ रही, इंशाल्लाह इसको हम सीख लेंगे। बस ऐसे याद कर ले, हज़ारुल मौती मौत के डर से, ठीक है। तो मैयत याद रखना, मैयत जो मर जाता है वो मैयत कहते हैं ना उसको। तो इसका इसम फाइल जो है ना, इसम फाइल थोड़ा सा चेंज है, माइतुन नहीं करना इसको, या मातिन नहीं करना, ठीक है। और मौत मौत मस्तर है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब है ज्यादा यजीदु, जिद जाइदुन मजीदुन जियादतुन, रब्बी जिदनी इल्मा, यहाँ से हमें ये याद रह जाता है। अच्छा कादा यकीदु, एक और भी हमने पढ़ा बीच में कादा जैसा, उसका हमने मुदारी क्या पढ़ा था? यकादु। यकादू, ठीक है। अब कादा यकीदू और कादा यकादू दोनों चेंज है, ठीक है, उनको आपस में गड़बड़ नहीं करना। ज्यादा यजीदू कादा यकीदू, ठीक है, उसने चाल चली। और वो था ना, वो था कादा यकादू, करीब है करीब था, उसमें थोड़ा सा रूट लेटर का भी फर्क है। इसमें काफ या दाल है, उसमें है काफ वाओ दाल, ठीक है। उसका सिर्फ माजी और मुदारे कुरान मजीद में यूज होता है, ठीक है। उसमें ये बाकी जो है इसम फाइल या अमर वगैरह ये नहीं यूज होते, ठीक है।
अच्छा जी, इसको पढ़ सूरह लेते मुल्क में हैं तकादु भी आता है ना, जी। सूरतुल मुल्क में तकादु भी आता है। हाँ जी, सूरह मुल्क में तकादु भी आता है, ता के तकादू, साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वो यानी कि माजी और मुदारे पूरा यूज हो जाएगा ना। देखिए, कादा या कादू या कादूना तकादू अकादू तकादूना नकादू ही या तकादू। ठीक है, और यह है यकीदू यकीदू ना तकीदू अकीदू तकीदू ना नकीदू और हिया तकीदू। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये चाल चलने वाला है। अच्छा, पढ़ लें सिस्टर, आप ही पढ़ लें जो बोल रही थी। जी जी। अ, कादा, सॉरी कादा वाला ही पढ़ना है जी जी या जी, जा नहीं नहीं वाला? नहीं नहीं, कादा वाला पढ़े। ठीक है। कादा यकीदु किद, काइदुन मकीदुन कैदुन। और इसकी आयत भी पढ़ लें। उसने तदबीर की, हाँ जी, उसने तदबीर की, इन्नहुम यकीदून कैदा। अच्छा, ये कहाँ पढ़ के आए हैं हम? ये हमने पढ़ते हैं मतलब अभी अपने क्यूसी में तो नहीं पढ़ा। ये सूरह तौरिक में, सूरह तौरिक में। सूरह तारिक में, ठीक है। हाँ, बेशक वो सब यकीदूना क्या करते हैं, तरकीबें करते तदबीर, हैं या चालें चलते हैं, चालें कैदन चलते चाल हैं। चलना। ठीक है, ये भी हम समझेंगे कि ये ऐसे दो इकट्ठे इकट्ठे मजदर और ये क्यों आ गए। इंशाल्लाह ये हमें समझ आएगी क्यूसी 5 में। ठीक है, हमने हर हर चीज को खोल के देखना है इंशाल्लाह, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जब आप कोई और कोर्स करें ना, कोई ग्रामर वगैरह का कोर्स करें, तो ये 6 चाबियों वाला कॉन्सेप्ट भी कहीं नहीं है। ये बताते हैं, माजी बताते हैं, मुदारे, उसके बाद डायरेक्ट आपको मस्दर बताते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं फिर ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पहले अमर सिखाएंगे, उसके बाद इस्मुल फाइल पर लेके आएंगे, फिर इस्मुल मफूल पर लेके आएंगे, वो भी सब नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि 6 चाबियां, इससे देखिए पूरा सारा का सारा हमें मवाद मिल जाता है कि काम करने वाला या जिस पर असर पड़ा है या इसका जो था हुक्म देने के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए मुंतखब कर लिया। ठीक है, जा आ या जी उ जी जा इन डैश मजीयतुन इजा जा नसरुल्लाहि वल फथ, जब आ जाए मदद अल्लाह की। ठीक है, और खाफा, खाफा के लिए क्या करना है? खाफा जो है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है चेंज, लगता ऐसी है कि ये ज्यादा की तरह खाफा। ठीक है, और जब हम इसको इसका बनाते हैं मुदारे, फिर वहां पर हमें पता चलता है कि असल में ये जो है सामिया की तरह है। फिर एक और भी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि इसके जो रूट लेटर है उसमें या भी नहीं है। तो बस सामिया को याद, खाफा को याद रख लें कि ये सामिया के जैसा है। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक पहले है, उतरा नाजिल हुआ, ग्रामर बाद में आई, तो ये कहाँ पर फिट किया ग्रामेरियन ने? इसको फिट किया सामिया पर। वैसे तो जो सामिया पर जैसे शाह है, शाह तो वो हम कह देते हैं शीन या और हमजा है। ठीक है, लेकिन खाफा में एक और फिर चेंज आ जाता है कि इसके रूट लेटर में वाव है, इसके बावजूद ये नसौरा की तरह नहीं है, कौला की तरह नहीं है। तो बस याद रख लें सामिया, खाफा, इनको आपस में इकट्ठा याद रख लें। खाफा वो डरा, ठीक है, या खाफू वो डरता है। खाफा या खाफू खफ, खाइफुन मखूफुन खौफुन। खाइफ लफ्ज हम उर्दू में भी याद कर सॉरी यूज करते हैं ना। तो हम्म, वो डरा, इसका मखूफुन जो है ना, बाज दफा ये ग्रामेटिकली बना दिए जाते हैं कि 6 चाबियां बनाई बना ली, यूज नहीं होते ना। और अगर कहीं यूज हों तो फिर इनके साथ कोई ना कोई प्रपोजिशन आती है, फिर ये यूज होते हैं। ठीक है, तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये कौन लोग होते हैं? जो मुत्तकीन हैं, जिन्होंने दुनिया में इतने अच्छे अमल किए कि वो जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो उन पर ना तो कोई खौफ होगा कि आगे हमारे साथ अब क्या होना है, और ना वो गमगीन होंगे कि वो पीछे दुनिया में जो छोड़ कर आए हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल करे। शाआ या अल्लाह। शाउ शा, शाइन मशीउन मशियातुन, इंशाअल्लाह से हम याद रखेंगे। और यहाँ पर हमने ना ये जो कलर कोडिंग से एक चीज और भी सीखनी है। अगर तो आप इंशाअल्लाह ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको जरा आप अंडू करें, ऐसे लिखा करें, इन अलग है, हर्फ है, शाआ क्या है, हमारे पास फेल है, अल्लाह इसके लिए हमारा फाइल या सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये एक पूरा का पूरा जुमला हम बोलते हैं कि इंशा अल्लाह, अगर चाहा
اللہ نے شاہا، اس نے چاہا، اور شاہ کے ساتھ ہمیں اللہ، ہمیں ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ نظر آ گیا، اگر چاہا اللہ نے۔ اور یہ جو انشاء ہے نا، کسی کو اب کچھ یاد بھی آیا ہوگا، اٹھو والا، ابن انشا، ابن انشاء، تو انشا انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس انشاء کا معنی پھر چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر تھوڑا سا فرق معنی میں آ جاتا ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ سے 9 افعال پر ہم نے مشق کی جو قرآن مجید میں 3600 مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 130 افعال ہیں، ایسے ہیں جو 5300 مرتبہ آئے ہیں، اور اگر 5300 مشکل لگتا ہے تو 5300، یہ سب قولا زادہ سٹائل پر ہیں، اس لیے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا سا فرق بھی ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر یہ سمپل وہی جو ہم ہر بار بول چال کرتے ہیں، کہاں پہ یاد رکھنے والی بات ہے؟ فعل امر میں، فعل امر اور فعل مضارع کا جو ہے نا جواب، وہ دونوں مضارع سے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ تو توبہ کر، پھر جواب ہوگا اتوبو، ہاں میں توبہ کرتا ہوں، توبو تم سب توبہ کرو، نتوبو ہم سب توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ چاہے مضارع میں کہا جائے یا امر میں، جواب ہم نے مضارع سے دینا ہے، اور سائلنٹ نہیں کرنا اینڈنگز کو، فعل مضارع کی اینڈنگ کو اگر سائلنٹ کریں یا ان پر ہم فتحہ ڈالیں تو پھر اس کے لیے ہمیں وجہ ڈھونڈنی پڑے گی، کیونکہ ڈیفالٹ حالت جو ہے نا مضارع کی، وہ پیش کے ساتھ آتی ہے، جہاں تبدیلی آئی وہاں پر تبدیلی کی وجہ لانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا، جیسے اب کم ہے، کم کہتے کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، تو جواب کیسے دینا ہے؟ اقوم، اقوم، میں کھڑا، ٹھیک ہے؟ قومو، نقوم، نقوم لیکن آپ لوگوں نے میرا کہنا مانا تو نہیں، آپ لوگ کھڑے ہوئے تو نہیں؟ اچھا نہیں نہیں، کھڑے نہیں ہونا، ہمیں کہتی اجلس اجلس، ٹھیک ہے؟ اجلس نہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب زیادہ والے ٹیبل میں خاص کیا یاد رکھنا ہے کہ دال کی جو اور تاک یہ قریب المخارج ہے نا، تو ہم نے دال کو جو سائلنٹ ہے نا بیچ میں، اس کو جزم کو ہضم کر لینا ہے، زد تا زد تو زد تم، یعنی کہ تا کی آواز کو ہم نے لے آنا ہے بولنے میں، ٹھیک ہے؟ تزیدو ازیدی کو یاد رکھیں، اسی طرح سے زد، ربی زدنی علما سے زد بڑھا، کیا جواب ہوگا؟ عزیز، ازیدو، ٹھیک ہے؟ زید زیدو، نزید، نزید نزید، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا ایک اور چیز یاد رکھنی ہے، خف نہیں پڑھتے نا، خف ہوتا ہے جو ڈر والا ہے نا، تو لا تخف، کیا آنسر کرنا ہے؟ ما اخفتو، لا لا اخاف، أخاف ٹھیک ہے؟ اچھا میں آپ کو نا تھوڑا سا یہ بھی بتاتی ہوں، یہ جو تما، تخافو لکھا نا میں نے، تا کو کاٹ دیا، خوف، خافو رہ گیا، اب اس فا کو ہم نے یہ پہلے دوما کے ساتھ اس کو سائلنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو ہو گئے نا سائلنٹ، سائلنٹ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو جب دو سائلنٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو جو کمزور تھا اس کو جانا پڑ جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے خف رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لا تخف ہے، اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ یہ جو مضارع والی تا ہم فعل نہیں میں نہیں گراتے نا، لیکن یہ جو دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس کو تجوید کے رول میں کہتے ہیں اجتماع الساکنین، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو ساکن کا جو اجتماع ہے وہ بولنے میں قابل قبول نہیں ہے، تو کمزور والے کو جانا پڑے گا، اس لیے پھر یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، جو امر ہے نا، تو یہ خف سے خاف تھا تو خف رہ گیا، تخاف تھا تو یہ تخف رہ گیا، لا تخف۔ لیکن جب ہم بناتے ہیں نا اس کی جو جمع بناتے ہیں تخافونا سے، پھر یہ تخافو رہ جاتا ہے، بس پھر نون ڈراپ ہوتا ہے، باقی پورا کا پورا جیسے تخافونا لکھتے ہیں نا ہم، یہ پریکٹس بتائی نہیں جاتی QC2 میں، لیکن اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو الحمدللہ کافی چیزوں کی سمجھ آنے لگ گئی ہے، تو یہ تخافونا جو تھا نا، اسی کا نون ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس میں الف ایک جمع والا لے آتے ہیں، تو یہ تخافو بن جاتا ہے، تو لا تخافو، پھر ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا نخافو، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ ہم نے انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے پڑھنی ہے اگلے کیوسیز میں. یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سمجھ لیا کریں، تاکہ یہ جو پھر ذہن میں کنفیوژن سی بیٹھ جاتی ہے نا کہ یہ پتہ نہیں کیسے تھا، یہ پتہ نہیں کیسے تھا. تو یہ پتہ نہیں کیسے والا ہم تھوڑا تھوڑا آنسر آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا جی، الحمدللہ سے ہماری آج کی کلاس بھی کمپلیٹ ہوئی، اذان کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ مصدر کا ترجمہ لکھنا ہے. پہلے مجھے بتائیں کال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مصدر والا ترجمہ، ٹھیک ہے. کہنا. کہنا، کہنا، ذوق، چکھنا، چکھنا. ہاں، چکھنا. بتاتے جائیں. توبہ کرنا، توبہ کرنا. ٹھیک ہے. ہونا. یہ ہونا، ہاں، ہونا بھی ٹھیک کھڑے ہے. ہونا. کھڑے ٹھیک ہے، ہونا، ٹھیک ہے. زیادہ کرنا، زیادہ کرنا، تدبیر کرنا. تدبیر کرنا. الحمدللہ. چلیں جی، ہمارا الحمدللہ سے کلاس ہو گئی کمپلیٹ. اپنے ساتھ ہوم ورک ضرور کرنے، ضرور کرنے ہیں. مصحف سے دیکھ کر بھی پڑھا کریں. اور ایک اور چلے ٹپ بھی دے دیتی ہوں آپ کو. اگر آپ سورت کو یاد کرنا چاہتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں کہ اکثر صورتیں جو ہے نا بینہ سے آگے والی صورتیں یاد ہوتی ہیں لوگوں کو. سورہ بینہ تھوڑی سی لمبی ہے، اور تھوڑی سی سمجھ لیں کہ آسان صورتوں کی نسبت جو ہم پیچھے ساری کر کے آئے تھے، آخری 10 صورتیں، پھر اس سے ہم تھوڑا تھوڑا اوپر جاتے ہیں. وہ تھوڑی سی لمبی بھی ہے اور تھوڑی سی مشکل بھی ہے. یاد کرنی شروع کرنی تو ایک دن ایک آیت یاد کریں. اب وہ ایک دن میں یاد ہو، 2 دن میں یاد ہو، یا 3 دن میں یاد ہو، وہ یاد ہو گئی. پھر آپ نے اگلے دن صرف ایک اس کے ساتھ آیت ملانی ہے. پہلی والی کو رپیٹ رکھنا ہے، یعنی کہ جب بھی شروع کرنی ہے لم یکن الذین سے شروع کرنی، پھر اس کے بعد اگلی آیت ملاتے جائیں. اس کو اگر 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں، تو دونوں اکٹھی پڑھنی، پھر تیسری پڑھنی. کیونکہ ہم بڑے بھی ہو گئے ہیں نا، تو وہ بچوں کو تو 1 2 دفعہ 3 دفعہ رپیٹ کرتے ہیں، ان کو تو فوراً یاد ہو جاتی ہیں. اب ماشاء اللہ بیٹا ہے نا، اس کے جو ترجمۃ القرآن میں ہیں صورتیں، وہ اس کو جلدی یاد ہو جاتی ہیں. ہمارا ذرا یاد کرنے کا جو ہوتا ہے سسٹم تھوڑا سلو ہو گیا ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، سلو ہوا ہے زنگالود نہیں ہوا، ہم کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ سے جب ہم یہ اس طرح سے کرتے جاتے ہیں نا، رپیٹ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد رہتا بھی ہے اور یاد آ بھی جاتا ہے. یاد ہو گئی صورت. اب کیا کرنا ہے؟ اگلا کام، پہلے اپنی سنتوں اور نوافل میں ان کو پڑھنا ہے. پہلے فرض میں نہیں پڑھنا، فرض میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے نا. تو سنت اور نوافل میں قرآن مجید کو کھول کے سامنے رکھ لیں، اچٹتی سی ایک نظر، جہاں کہیں بولا ایک اچٹتی سی نظر ڈالیں، یاد آ جاتا ہے دوبارہ. یہ بھی نہیں کہ رکھ کے پوری تلاوت آپ کریں، ایسے نہیں ہوگا. جو آپ نے یاد کیا بس اب خود کو یہ کہ غلطی سے بچانے کے لیے جب پکی ہو جائے، کوئی نہیں اگر سننے والا، آپ کے موبائل میں ریکارڈر موجود ہے، خود کو خود سنایا کریں، قرآن پاک کھول کے سنا کریں کہ کہیں میری کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. پھر ان کو اپنے فرضوں میں لے آئے. تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ پڑھو بھی اور اس کو یاد بھی کرو، جو جتنا حصہ یاد کر سکے، تاکہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے جائیں تو چڑھتے جائیں. انشاءاللہ یہ والی چیز بھی ہم قیامت والے دن روز حشر ہمارے کام آئے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی کہ دعائیں بہت ضروری ہے. اپنے لیے دعا بھی ضرور کرنی، اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی کویسچن، کوئی وعلیکم کامنٹ تو ضرور کر لیجئے، ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کو بند کر دیں گے. اور الحمدللہ وعلیکم سے السلام. نماز کے ٹائم تک ہماری کلاس بھی پوری ہو گئی. جی میم، بس ایک کوشچن ہے. جی جی. ایک یہ جو ہم نے جا والا پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے ماضی میں وہ آیا. تو ٹھیک ہے، ایک اور ہم نے لفظ پڑھا تھا نا، عطا، اس کا مطلب بھی وہ آیا ہی ہے. وہ آیا جی. تو دونوں کا بالکل سیم معنی ہے یا بالکل کچھ ڈفرینس بھی ہے؟ نہیں، ایک جیسے ہی معنی ہے ان کے. کہیں پہ عطا اچھا. یوز ہوتا ہے اور کہیں پہ جا یوز ہوتا ہے. یہ ہمارے بھی اسی طرح کے سوال ہوتے تھے. تو ٹھیک. ٹھیک ہے، کوئی آتا ہے، کوئی تشریف لاتا ہے، مانا تو ایک ہی ہو جاتا ہے نا. تو یہ پھر کانٹیکس کے حساب سے ہمیں سمجھ آ جاتی چیزوں کی. بول آیا نا، عطا امر اللہ، آیا اللہ کا حکم، یہ اس کے ہاں ہاں. اور ساتھ بالکل. اور دیکھیں یہ جو آتا کے ساتھ پھر ہم نے بی کا صلہ سمجھ لیا تھا کہ وہ جی، آیا، اور پھر یہ کہ وہ ساتھ لایا. ساتھ کچھ لے کے آیا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ساتھ جی. ساتھ یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ٹھیک ہے. خافا، ٹھیک ہے، ایک ہوگا خاشیا، یخشا. ٹھیک ہے. ہاں اسی ہاں. طرح سے حاضیرہ، یہ سارے وہ ڈرا.
تو جب میں نے پوچھا تھا تب ہم لوگوں نے نا یہ سر سے کیا تھا. سر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے باپ کا ڈر، ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایک یہ جو دنیا والوں کا ڈر ہوتا، تو ڈر ہی ہے نا. تو یہ ڈر مختلف 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 معنی ایک جیسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ جب ہم کانٹیکس پہ جاتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہاں 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 یوز ہوگا. موقع کی مناسبت سے پھر پتہ بالکل چلتا ہے ہمیں. بالکل. اور یہ صرف عربی میں نہیں ہے، اردو انگلش وغیرہ مطلب جو زبانیں ہمیں آتی ہیں، پنجابی، تو کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہم ایک طرف پنجابی میں تو آپ غور کیجیے گا، چلیں آج سے غور کرنا شروع کریں، ایک ایک لفظ کے دو دو معنی نظر آئیں گے، سمجھ آنے لگ جائیں گے کہ ایک ایک مطلب ہم کہتے ہوتے تھے جب ہم نے یہ والا کانسیپٹ سیکھا تھا نا، ہم کہتے تھے تھوڑے لفظوں سے زیادہ پنجابی زبان بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوتا ہے نا، کڑھائی کرنے کو کڈنا کہتے ہیں نا، کڈنا، کڈائی کر لو، کڈ لو. ایک ہوتا ہے چیزیں کڈنا نکالنا، ہے نا. تو یہ دیکھیے ایک تو میں نے بتا دیا، اب آپ سوچیں گے نا، وہ بہت سارے نظر آئیں گے. تو ایسے ہی ہوتا ہے ہر زبان میں مختلف مختلف. جیسے حرف جر ہم نے دیکھا تھا، کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا، تو ہر زبان کے اپنے اپنے قاعدے. ابھی تو ہم یہاں تک یہ سیکھ رہے ہیں نا، ابھی ہم نے آگے آگے جہاں پر جانا ہمیں مذکر مونس میں لگا کرنا ہے کہ یہ کیوں، یہ تو مونس ہے تو یہ مذکر کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سمجھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا جی اذان شروع ہو گئی. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ